हेलो फ्रेंड्स, वीकली करेंसी एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस एनालिसिस इज ब्रॉट टू यू ऑन behalf of Ticker TV. Before going to the analysis part, I would like to mention that we will be discussing USD INR, how it behaved in current week, and what is expected from here. Discussing USD INR pair alone may not give a better picture without discussing other important aspects like dollar index, GBP dollar, euro dollar, dollar yen, dollar candy, dollar CNY, Aussie dollar, and crude oil. Therefore, we will go through the above mentioned instruments along with USD INR. Our focus will be mainly the technical analysis part, although we will be trying to consider partly the fundamental aspects like NFP, CPI, and central bank actions, etc. In this current week, we have few important events. जैसे कि आपका आज इवनिंग का एनएफपी डेटा, उससे पहले आज मॉर्निंग में हमारा आरबीआई पॉलिसी रेट डिसीजंस, ऑल्सो थर्सडे में था बीओई का रेट डिसीजंस, एंड उससे पहले ऑसी का आपका रेट डिसीजंस. तो इम्पोर्टेंट पार्ट जो लेटेस्ट हुआ है दैट इज एनएफपी पार्ट. वहां पे आज एनएफपी डेटा काफी स्ट्रांग आया है. एनएफपी केम एट 528,000. Jobs, it's a very strong number. Unemployment rate falls to 3.5% as the labor market tightens. Immediately after the US employment report crossed the wire, Treasury rates spiked higher on bets that the Fed will continue raising borrowing costs aggressively to cool demand and tame rampant inflationary forces. तो इसीलिए हम देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स फ्रॉम 105.80 और 106 से इट मूव्ड हाई टू 106.8090 तक. एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि डेली बेसिस पे अगर इसको टेक्निकल पार्ट में हम एनालाइज करने का कोशिश करेंगे तो पिछले आपके 27 जुलाई onwards, dollar index is on the lower part of the Bollinger Band. After touching the lower part of the Bollinger Band, lower band, it is testing the center band of the Bollinger Band. On daily time frame, prices are making lower high, lower low formations. Now, 107.00 to 107.50 is an important resistance zone. If it respects this particular resistance zone, then it is expected to remain within 105, 105.30 on the lower side, and 107 and 107.50 on the higher side. Within this particular range for next week, it is expected to move in between that. Thereafter, breaking below 105 and 105.30 may open that gate next support range towards 103.75 to 104.00. If we see the weekly price action, यहाँ पे हम देखेंगे कि on weekly time frame, price took support at the lower end during the week, that is around 105.00 to 105.30, and recovered almost 80% of the previous week's losses. As per weekly price action, 107 to 107.50 will act as an important resistance zone, and any daily close below 105 will open lower side opportunities. Next, हम देखेंगे डॉलर रुपी. डॉलर रुपी जब हम बात करने जाएंगे तो आज का इंपॉर्टेंट इवेंट है एमपीसी रेट डिसीजंस. Indian MPC raised repo rate by 50 basis points to 5.4% from 4.9%. CPI inflation remains uncomfortably high. Rupee depreciation has happened in an orderly fashion. Remain watchful and focused on maintaining stability of Indian rupee, says RBI governor.
RBI to remain vigilant on liquidity front. India has witnessed portfolio outflows of 13.3 billion in FY23 so far from 1st April till 3rd of August. टेक्निकली अगर हम इसको एनालाइज करने का कोशिश करेंगे, after trading low of 78.45, the pair reversed the losses sharply and traded high of 79.82 before closing at 79.38 here. On weekly time frame, the price made a spinning top, showing price rejections at both ends of 78.50 on the lower side and 79.80 on the higher side. This spinning top formation, what it says that price may remain within this range, that is 78.50 to 79.80 for some more time before it is breaking the either side range. Once the price breaks on the either side, we may expect some one-sided momentum. That means below 78.4050 level, we may expect 77.40 to 77.80 as the next major support level. On the higher side, any break above 79.90 or 80.00 zone, the spot may move higher towards 80.50 to 80.75. But this move is only possible, that means on the higher side, is only possible if there is, that means the China-US relation, that the tension escalates over Taiwan. This type of issue, how it is going to take the shape. यानी ये जो टेंशन बिटवीन चाइना एंड यूएस ओवर ताइवान कैसे डेटोरिएट होता है या कंट्रोल हो जाता है. अगर फर्दर डेटोरिएट होता है तो वी मे एक्सपेक्ट सम डेप्रिसिएशन इन रूपी पाउंड. जीबीपी डॉलर हम अगर देखेंगे तो पहले फंडामेंटल पार्ट देख लेते हैं. लास्ट थर्सडे को यानी 4th of August 2020 को बीओई के रेट डिसीजंस थे. BOE raised interest rates by 50 basis points, but GBP dollar fell as the central bank warned that a long recession was on its way, with inflation seeing topping 13%. BOE Governor Andrew Bailey said that bringing down inflation to the 2% target is an absolute priority, and all options are on the table at the future policy meeting. थर्सडे का बीओई रेट डिसीजंस के बाद इनिशियली हम एक स्पाइक देखे होंगे ऊपर की तरफ, बट उसके बाद नीचे आ गया है. जीबीपी डॉलर रिवर्सेस द प्रीवियस डेज बाउंस ऑफ वीकली लोज. कारण क्या है? कारण ये जो रेट हाइक है सिंस 1995 का हाईएस्ट रेट हाइक है, which took to 1.75% rate. तो बीओई का जो ये रेट डिसीजंस है, इट missed wide market expectations, but recession was drawn the cable. GBP dollar retreats from 1.22 level to lower towards 1.20 to 1.2050 levels, while reversing the previous day's rebound from the weekly bottom during Friday's Asian session. Despite heavy rate lift by pound, dollar slammed nearly 100 basis points or more as the rate statement revealed that the UK is
projected to enter recession in Q4 2022. The same is likely to last for next 5 quarters. BOE also mentioned that the gross domestic product could fall by 2.1%. अभी आते हैं हमारा टेक्निकल पार्ट. टेक्निकल पार्ट में देखेंगे कि दो ये 25 जुलाई वाला वीक जो काफी बॉटम से रिबाउंड किया, एंड ये वाला जो है ये करंट वीक का कैंडल है जो आपका 1.2250 लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है. व्हाट इट मींस, हम अगर आरएसआई टर्म्स में देखेंगे, आरएसआई टर्म्स में वीकली टाइम फ्रेम पे ये बियरिश सेंटिमेंट है जो डेली में रिबाउंड करने का कोशिश किया था फ्रॉम 1.17802 टू 1.2275, लेकिन ऊपर की तरफ सस्टेन कर नहीं पाया एंड नीचे की तरफ सेल ऑफ हो गया. एंड अभी क्या है, हमें देखना है कि ये 1.18 ऑन द लोअर साइड एंड 1.2250 ऑन द हायर साइड, इस रेंज के बीच में थोड़ा प्राइस वॉलेटाइल रहने का एक्सपेक्टेशंस है. जीबीपी आईएनआर में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया इन जीबीपी आईएनआर, एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 97.15 ऑन द हायर साइड एंड 95.45 ऑन द लोअर साइड. यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइस जो आपका लो लेवल से 93.75 से 94.00 से जो ऊपर में अपस्विंग दिया था टुवर्ड्स 97, यहाँ पे ये बॉलिंजर बैंड का जो सेंटर बैंड है वहां पे रेजिस्टेंस लिया है एंड नीचे की तरफ आ रहा है. दैट मींस देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि आने वाले दिनों में ये लो साइड एक्सपेक्टेड है. मींस दैट इज 93.50 से 94.00 टच करने का एक्सपेक्टेशंस है ऑन ए वीकली बेसिस. अगर हम डेली बेसिस में देखेंगे, ये आपका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हो गया 97.00 से 97.25 as the resistance, whereas the initial support may be around at 95, 95.25. एक बार अगर ये रेंज ब्रेक कर गया, then we may expect 93.50 to 94.00. यूरो डॉलर हम देखेंगे तो ये करंट वीक में एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.0122 on the lower side and 1.0294 on the higher side. यहाँ पे बेसिकली price is expected to consolidate in between 1.0050 on the lower side and 1.0300 on the higher side में आने वाले हफ्ते में कंसोलिडेट होने का एक्सपेक्टेशन है. अगर हम डेली में देखने का कोशिश करेंगे तो डेली में ये जो रेंज है डेली टाइम फ्रेम पे 1.03 ऑन द हायर साइड एंड 1.0100 ऑन द लोअर साइड, ये दो बीगी के अंदर में प्राइस मूव होने का एक्सपेक्टेशन है. इधर से ब्रेकआउट पे यानी नीचे की तरफ 1.01 के ब्रेक डाउन पे वी मे एक्सपेक्ट द मूवमेंट टुवर्ड्स 99.50 टू 1.00 एंड अबव 1.03 वी मे फेस द रेजिस्टेंस एट 1.0380. यूरो आईएनआर अगर हम वीकली में प्राइस एक्शंस देखेंगे तो एक बड़ा प्राइस रिजेक्शंस आया है एट द बॉटम लेवल. ये एक हैमर फॉर्मेशन है. व्हाट इट मींस, ये लोअर लेवल पे प्राइस काफी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आरएसआई टर्म्स में प्राइस काफी वीक है. व्हाट इट मींस, जब तक ये आपका ये जो जोन है, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर जोन, आपका 82.25 on the higher side and 81.75. So 81.75 to 82.25, it is expected to act as a good resistance. इसको अगर ऊपर जाना है तो इस रेजिस्टेंस जोन के बाहर ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा. अदरवाइज सम रेंज बाउंड मूवमेंट इन बिटवीन 79.75, 80.00 ऑन द लोअर साइड एंड आपका 82.00, इसी के रेंज के अंदर में कुछ कंसोलिडेट होने का एक्सपेक्टेशन से. चॉपी वॉलेटाइल मूवमेंट ऑन बोथ साइड्स. डेली चार्ट में हम अगर इसको देखने का कोशिश करेंगे तो ये
आपका 79.50 to 79.75 is acting as a good support level. अभी हमें ये वाला जोन जो है दैट इज 81.75 to 82.25 is acted as a is expected to act as a major resistance. इसको ऊपर जाना है तो इसको ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा. डॉलर येन में अगर हम देखेंगे कि पिछले हफ्ते में ये आपका लो ट्रेडेड जो हुआ था, आपका 130.40 लो ट्रेड हुआ था. यहाँ पे हम अगर देखेंगे प्राइस सेंटर बैंड में ब्रेक डाउन करने के बाद, ऊपर से सेंटर बैंड को ब्रेक डाउन करने के बाद ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉलिंजर बैंड में आया एंड यहाँ पे बाउंस लेके अभी आपका जो फ्राइडे वाला एक्टिविटी था ये 135.20 के आसपास है. हमें यहाँ पे देखना था कि ये जो 134.50 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस लेता है या नहीं लेता है. लेकिन फ्राइडे का एनएफपी डेटा स्ट्रॉन्ग आने के बाद ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया है. नाउ अभी हमें देखना है ये जो सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड क्या ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, यानी प्राइस नीचे से यहाँ पे जाने के बाद दैट मीन्स 136 ऑन द हायर साइड. ये सेंटर बैंड के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देना चाहिए आने वाले हफ्ते में, मंडे ट्यूसडे में. और ई एरिया पे अगर रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे की तरफ आ जाता है देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड दैट इज ए वेरी बेयरिश साइन. लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं. तो अभी कुछ कह नहीं सकते, ओनली द एजम्पशंस पार्ट. अभी ये आपका 135.20 से ये 136 के तरफ आसपास जाने के बाद फिर दोबारा नीचे आता है या नहीं आता है, ये हमें आने वाले हफ्ते में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को देखना पड़ेगा. वीकली में अगर हम देखेंगे तो वीकली में सरप्राइजिंगली क्या हो गया, ये जो प्राइस एक्शन है सेंटर बैंड में टच करके ऊपर गया है. सो यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखा दैट इज 131, जो हमारा पहले प्रीवियस वीक का जो एक्सपेक्टेशन था वहां पे था. इसके नीचे ही आपका लोअर एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो अभी एज ऑफ नाउ इट इज नॉट हैपेनिंग एज ऑफ नाउ. इसको ब्रेक करने के लिए काफी एक्टिविटीज होना पड़ेगा लोअर तरफ में. एज ऑफ नाउ हम ऊपर की तरफ ही देख रहे हैं. फ्रॉम हियर अनदर 100 पॉइंट्स, 100 और 125 पॉइंट्स ऊपर आपका रेजिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा वो देखना है. नहीं लेता है तो थोड़ा सा चॉपीनेस एक्सपेक्टेड हो सकता है. जेपीवाई आईएनआर अगर हम वीकली में देखेंगे ये सेंटर बैंड में अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लेके नीचे के तरफ आया है. व्हाट इट सिग्निफाइज देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि ये दोबारा 57 के आसपास 0.57 के आसपास आने का हायर प्रोबेबिलिटीज बन सकता है. डॉलर कैंडी में हम क्या देखेंगे, वीकली में ये सेंटर बैंड में सपोर्ट लेके, ये जो सेंटर बैंड आपका नजदीक 1.28 के आसपास था लेकिन ऊपर गया है. सो यहाँ पे थोड़ा सा चॉपीनेस इज एक्सपेक्टेड. अगर हम डेली में देखने का कोशिश करेंगे, अभी जो आप देखोगे कि 1.31 is expected to act as a major resistance and 1.2770 as a good support. So price is expected to move in between this zone only. कौन सा जोन, ये वाला जोन के अंदर में ही बिहेव करने का एक्सपेक्टेशन है. व्हाट इट इसके बाद क्या हो सकता है, लेट मार्केट टू ब्रेक आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड. उसके बाद ही हम कुछ देखने का कोशिश करेंगे. ऑसी डॉलर वीकली में देखेंगे कि आपका एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है. लास्ट आरबीआई का जो पॉलिसी रेट डिसीजन था जहां पे दे हैव इंक्रीज द रेट बाय 50 basis points. Also, RBI warns economy will slow sharply as inflation slows. डेली में अगर हम देखेंगे तो एक लोअर हाई लोअर लो टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है.
अगर ये डेली बेसिस में सेंटर बैंड के नीचे सक्सेसफुली क्लोज दे देता है, then we may expect some downward movement, else some both side choppy movements are expected. डॉलर सीएनएच देखेंगे, डॉलर सीएनएच वीकली में एक आपका प्राइस, ये ग्रीन कलर का कैंडल है, बट द प्राइस गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द हायर एंड। डेली में देखेंगे तो ये आपका 14 जुलाई का जो मदर कैंडल है उसके रेंज के अंदर में ही बिहेव कर रहा है। समथिंग व्हाट आई वांट टू मीन इज दिस वन, दिस रेंज। तो आपका जो ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है इसको, सीएनएच को, ये 14 जुलाई का मदर कैंडल के बाहर कन्विंसिंगली क्लोज देना चाहिए। देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड मूवमेंट ऑन आइदर साइड। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट, शार्प मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होने का एक एक्सपेक्टेशन है। इसके साथ डॉलर रुपए का एक अच्छा खासा कोरिलेशन है। ये अगर ब्रेक आउट होता है रेंज के बाहर एंड मूव होता है आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, देन डॉलर रुपए का भी एक उसी डायरेक्शन में एक शार्प मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाइम में भी लिटिल बिट आगे पीछे हो सकता है, साइमल्टेनियसली होगा बोल के कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे एक सिमिलर टाइप ऑफ सिमुलेटेड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन रूपी ऑल्सो। क्रूड ऑयल हम देखेंगे तो इस हफ्ते में एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है, and it traded in between 104.38 on the higher side and 92.82 on the lower side. अभी हमारा जो है कि बेसिकली 11 जुलाई का जो वीकली कैंडल है उसका लो दैट इज 94.55, उसके नीचे क्लोज देना चाहिए, तभी जाके एक अच्छा खासा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द डाउनवर्ड साइड। इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में ये आपका 14 जुलाई का जो पिन बार है उसके लो के नीचे क्लोज दिया है, लेकिन फॉलो थ्रू आज दिखा नहीं है। आज उल्टा एक बाउंस करने का कोशिश कर रहा है। अभी हमें देखना है 97 एंड 97 एंड 98.75, यहाँ पे ये क्या रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ आता है या नहीं। अगर नीचे की तरफ आता है देन वी मे एक्सपेक्ट सम शार्प डाउनवर्ड मोमेंटम हियर। अभी ये जो 96.50 से 97.00 इसके नीचे ब्रेक डाउन किया है, बिकॉज इट्स ए मेजर सपोर्ट लेवल अर्लियर, उसको ब्रेक डाउन किया है, लेकिन फॉलो थ्रू हम यहाँ पे देख नहीं रहे। एक बार अगर फॉलो थ्रू मिल जाता है देन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ब्रांड ऑयल, ब्रांड क्रूड जो है इट इज मूविंग टुवर्ड्स 70.00 टू 71.00 इन डॉलर टर्म्स। तो इसके लिए क्या है कि आने वाले 2-4 दिन में फिर दोबारा ये नीचे से ऊपर ना चला जाए। ये अगर ऊपर में चला जाएगा तो ये जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन का निगेट कर रहा है, यानी इसको अगर 71 की तरफ जाना है तो हमें अगले हफ्ते में प्राइस कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ होना पड़ेगा। एंड इमीडिएट जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है दैट इज 97.00 टू 98.75 एज ए मेजर रेजिस्टेंस एरिया। अगर हम यूएस 10 ट्रेजरी देखेंगे तो इस हफ्ते में एक अच्छा खासा रिबाउंड देखा गया है इन 10 ट्रेजरी, एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 2.516 ऑन द लोअर साइड एंड 2.869 ऑन द हायर साइड। ये स्पेसिफिकली आप अगर डेली चार्ट में देखोगे तो आपका आज एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम देखा गया है। अपवर्ड मोमेंटम में ये अभी कहाँ पे है, ये सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड में अटका हुआ है। ये वाला सेंटर बैंड बोलिंजर बैंड का सेंटर बैंड में है। इसको ये जो लेवल है दैट इज 2.86 के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए ऑन ए डेली बेसिस। अगर ये क्लोज दे देता है तो ये फिर ये जो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को निगेट करेगा एंड मार्केट विल एंटर इनटू चॉपीनेस, जहां पे कोई ऑर्डरली मूवमेंट एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते। यानी कभी जूम करके ऊपर जाएगा, कभी जूम करके नीचे की तरफ भी आ सकता है, कोई ऑर्डरली फैशन
एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर ये 86 2.8650 या 2.87 के ऊपर क्लोज दे देता है। तो जब तक ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है तो एक ऑर्डरली फैशन है, एंड देयर आर हायर चांसेस कि इट में मूव टुवर्ड्स 2.337। लेकिन आज का जो एनएफपी डाटा है, ये डाटा सिग्निफाइज दैट फेड में initiate some more aggressive rate hikes. That is what the price action is telling that one. तो देखना है आने वाले हफ्ते में क्या एक्सपेक्टेड है। तो ये जो आपका वीकली करेंसी एनालिसिस है अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये जो प्रेजेंटेशन है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है, रिक्वेस्ट ऑल टू लाइक एंड कमेंट बिलो द वीडियो। ऑल्सो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब दिस चैनल।